Good evening, dear students. Today we are going to discuss communication skills. When you visit some office for job or an interview or you go for some meeting, they will ask from you whether you know communication skills or something like that. Do you have communication skills or not? In interview they will judge whether you have communication skills or not, how much strong your communication, how much effective your communication skills are. इसके अलावा आईटी है, मास कम्युनिकेशन है और जर्नलिज्म है. Most importantly, in spoken English or IELTS, you must need communication skills, because without communication skills there is no language. Okay, so where there is a job, there is an ultimate and actual requirement of communication skills, especially in public sector as well as private sectors. So effective communication has 7 C's. Okay, 7 C's means there are 7 skills which start from C, the letter C. उन 7 C's को 7 effective communication skills या 7 C's of effective communication कहते हैं. ठीक है. First of all, your communication should be clear, correct, complete, concrete, concise, coherent, and courteous. So let's talk about these communication skills and evaluate ourselves if we have these communication skills in our communication or not. जो तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे अंदर हैं, वेल एंड गुड. अगर कुछ नहीं है तो उनको अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करनी है. और व्हेन आई विल डिस्कस दीज कम्युनिकेशन स्किल्स आई विल गिव एग्जांपल्स ऑफ बैंकिंग, मोबाइल कंपनीज एंड call centers, so that you can understand well. First of all, your communication must be clear. When writing or speaking to someone, be clear. Okay, you should be clear about your goal or message. Whatever you want to say, you should be clear. आपको पता होना चाहिए मैंने क्या कहना है. ठीक है, आपका पर्पस क्या, मकसद क्या कहने का, वो आपको क्लियर होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में. व्हाट इज़ योर पर्पस इन कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन? इफ़ यू आर नॉट श्योर देन योर ऑडियंस वॉन्ट बी श्योर ईदर. अगर आपको ही नहीं पता आपने क्या कहना है तो आपका जो ऑडियंस है उसको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या कहना है. सो यू मस्ट बी क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, आप कॉल सेंटर पे काम करते हैं, कॉल आई है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपने कस्टमर को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. ठीक है, क्या पब्लिसिटी करनी है, क्या एडवर्टीजमेंट करनी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, देन कंसाइज. योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट बी कंसाइज. कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ. ठीक है, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए. देयर इज नो नीड टू lengthen your discourse or lengthen your communication. You should be clear or you should be concise. Okay, to the point. When you are concise in your communication, you stick to the point. Okay, to the point baat kare and keep it brief and keep it short. Okay, your audience does not want to read 6 sentences when you could communicate your message in three. ठीक है, when you can talk in 3 lines, your audience does not don't need 6 lines or more than 6 lines. Okay, जितनी कम से कम बात हो सकती है उतनी कम से कम बात में अपनी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बता दें. ठीक हो गया. For example, we feel embarrassed when we listen call centers or calls from call centers or mobile networks. Okay, we want to the point communication, but if they prolong their communication, we feel embarrassed and awkward. So हमें भी फिर कम्युनिकेशन करते हुए टू दी पॉइंट होना चाहिए. हम जितना एम्बेरस फील करते हैं ना मोबाइल कंपनीज की कॉल्स को, उतना ही फिर हमारी रियल लाइफ में भी लोग हमसे एम्बेरस होते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं. Third, concrete. Your communication must be concrete. When your message is concrete, then your audience has a clear picture of what you are telling them.
ठीक है। कंक्रीट का मतलब होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड। कंक्रीट का मतलब आपको पता ही है, सीमेंट से बनी हुई चीजें, मजबूत चीजें, ठीक है। योर कम्युनिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। देयर शुड बी नो assumptions or superstitions, okay, guess or risky communication. You should be very much factual, very much concrete in your communication, ठीक है। देयर आर डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स होनी चाहिए बट नॉट टू मैनी, ठीक है, बिकॉज वी हैव लर्न दैट इट शुड बी ब्रीफ और कंसाइज। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बट डिटेल्ड होनी चाहिए। एंड विविड फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, वाजिफ हकाइक होने चाहिए। योर मैसेज इज सॉलिड, ठीक है, आपकी बात मजबूत होनी चाहिए। योर कम्युनिकेशन, सम पीपल फील दैट in banking system their communication is poor. Why? Because they don't provide facts and figures, okay. You should give information about your facilities, your credentials, and your other extra what you can say information. If you don't give that information, no one will open his or her account in your bank, okay. So in communication आपको चाहिए कि उनको सॉलिड कंक्रीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। देन योर कम्युनिकेशन मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। करेक्ट का मतलब ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिकली करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपको जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, जितनी भी आप पीछे जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, तीनों आपके अंदर हैं, लेकिन आपको ग्रामर ही करेक्ट नहीं आती, लैंग्वेज ही नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आती, या जो भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वही नहीं आती, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स किसी काम के नहीं है, ठीक है। In other words, when someone talks about communication skills, he or she has a mind that the person must know English language correctly, fluently, accurately. So communication skills are uh, equal to करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज। सो आपकी लैंग्वेज जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन योर कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट फिट्स योर ऑडियंस, एंड करेक्ट कम्युनिकेशन इज आल्सो एरर फ्री कम्युनिकेशन, ठीक है। देयर शुड बी नो एरर्स ऑफ लैंग्वेज, ओके। but most important is to convey the meaning and message, okay. If you make mistake, it does not matter, but you should try your level best to improve your language skills as soon as possible, okay. आपको जितनी जल्दी हो सके इम्प्रूव करें, करेक्शंस करें अपनी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो सी है, फिफ्थ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है कि एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपकी बात में, ठीक है। आप पहले सर के बारे में बात करेंगे, फिर चेस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर बेली के बारे में, फिर लेग्स के बारे में बात करें, और फिर फुट के बारे में बात करें। ये है एक फ्लो, एक कोहेरेंस। लेकिन अगर आप पहले सर के बारे में बात करें, फिर पाँव के बारे में बात करें, फिर आप बेली पर आ जाएं, फिर आप चेस्ट पर, फिर शोल्डर पर, कभी एंकल्स पर, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह जो करेंगे तो वो एब्रप्ट किस्म की जो कम्युनिकेशन होगी वो इतनी अच्छी नहीं, इफेक्टिव नहीं होगी। सो coherent communication means there must be a logical order in your communication from head to tail rule, ठीक है। head to tail rule का मतलब आप स्टार्ट हेड से करके टेल तक जाएं, ठीक है, वन बाय वन स्टेप्स लें। when your communication is coherent, it's logical, all points are connected and relevant to the main topic, and the tone and flow of the top text is consistent, ठीक है। एक फ्लो होना चाहिए, ऑर्डर, तरतीब होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में, तो ये कोहेरेंट होगी। देन सेकंड लास्ट करेक्टरिस्टिक और योर ऑफ योर कम्युनिकेशन इज कंप्लीटनेस। आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इट मीन्स द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, यू शुड कन्वे दैट इंफॉर्मेशन कंप्लीटली, ठीक है। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आप ज़रूर फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। होनी तो ब्रीफली चाहिए, वर्ड्स ब्रीफ ही होने चाहिए, लेकिन जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने रिक्वायर किए हैं वो आपको बताने चाहिए, ठीक है। In a complete message, the audience has everything they need to be informed and, if applicable, take action, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन दे दें कि अगला बंदा डिसीजन कर सके, ठीक है। वेदर यू आर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, you should provide much more information, as much information as the customer, the student, the what you can say, the people know,
और वांट टू नो, ठीक है, जितनी लोगों को ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की उतनी आप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो कोई डिसीजन ले सकें, आपके पास अकाउंट खुलवा सकें, या आपके साथ आपको जॉब पर रख सकें, या आपके पास आपकी सिम खरीद सकें, ठीक है। Last but not least, courteous. Your communication must be courteous. It means that you should be polite. You should take care of the standard and status, age, gender of other person. ठीक है, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसका अदब एहतराम तमीज़ भी करनी है, ठीक है। सर कह के बात करनी, मैडम कह के बात करनी है। उसके बाद आप तू तू नहीं कहना, बल्कि आप कहें। और इंग्लिश में अगर बात कर रहे हैं तो टोन अपनी जो है वो धीमी रखें, अदब एहतराम से बात करें, ठीक है, अगले बंदे को रिस्पेक्ट दें। courteous communication is friendly, open and honest, ठीक है, it must be friendly, ठीक है। there are no hidden insults or passive aggressive tones, आप सामने वाले को इंसल्ट नहीं करेंगे। last night I was reading a post, a funny post. There was written something like that कि if you say one ice cream it cost $10, अगर आप यानी कि आइसक्रीम वाले को सिर्फ ये कहेंगे ना कि एक आइसक्रीम दे दो तो आपको $10 की देगा। उसने बड़ा अच्छा ये एक मैसेज दिया। तो सेकंड उसने लिखा, ये एग्जाम्पल के तौर पर, सेकंड लिखा कि अगर आप कहेंगे वन आइसक्रीम प्लीज तो आपको $5 की देगा वो, यानी $5 आपको कंसेशन कर देगा। और अगर आप कहेंगे हेलो या हाय वन आइसक्रीम प्लीज, अगर आप हेलो वन आइसक्रीम प्लीज तीनों चारों जो वर्ड्स हैं वो कहेंगे तो आपको वो $1 में दे देगा आइसक्रीम। हालांकि है $1 की आइसक्रीम, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर इम्पोलाइट कम्युनिकेशन ही और शी विल चार्ज मोर देन $1, ठीक है, आपसे वो ज़्यादा चार्ज करेगा अगर आप इस तरह करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर है कि अगर आप पोलाइटली कम्युनिकेट करते हैं तो आपके साथ लोग अच्छी तरह से डील करते हैं। सो यू मस्ट बी courteous, you keep your readers viewpoint in mind and you are empathetic to their needs। courteous का मतलब ये भी होता है कि whatever you are communicating or speaking you should put yourself into the shoes of others or listeners। अपने आप को सुनने वाले की जगह पे रख के सोचें कि मेरे अल्फाज किस हद तक खुश अखलाक हैं, किस हद तक नरम हैं, अच्छे हैं, ठीक है। So this is the conclusion of 7 C's of effective communication. First of all, it should be clear. Second, concise. Third, concrete. Fourth, correct. Fifth, coherent. Sixth, complete. And seventh, courteous. So this is all about 7 C's of effective communication. If you have any question, you can ask. And if you like this video, please subscribe my channel. Thank you very much.